इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज CSJMU से मयूरी सिंह और रिसर्च स्कॉलर्स। साइबर लॉ के लिए आपके रिसोर्स पर्सन हैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सहवाल सत्यार्थी। एजुकेशन सारी आपकी BHU से है और ये भी मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरे छोटे भाई भी हैं भैया, तो अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि साइबर लॉ के फील्ड में आज जो काम है सहवाल जी का, जिस लेवल पे वो जा रहे हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है, तो उससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। धन्यवाद। बस शुरू कर सकते हैं आप। जी भैया, ठीक है। Very good morning to all dear participants. So I'm glad to see that 6 research scholars from Kanpur University pursuing their coursework and it's my privilege to be part of this discourse. This coursework and completion of coursework for the purposes of your PhD definitely is going to help you a lot in your research activities and in future endeavors also. Whatever we discuss here, I hope it would help you a lot in your research. And I'm to discuss 4 topics with you. The very first topic that we have actually this part of your course curriculum is somehow very contemporary, very important and very interesting topic. This is a right to personal freedom in digital environment, a copyright perspective. So definitely I would focus much on the perspective. In what perspective we are to discuss this particular issue. This is right to freedom and right to freedom not in general context, in digital environment. And we have a clear perspective to make our analysis, that is copyright perspective. So whenever we talk about this copyright, I want to begin with this perspective part. Then only you would appreciate this entire discussion. Copyright. Many people, they think that it's one right, it's single right. No, it's bundle of rights. Plenty of rights. And it is always regulated by a legislation, a law. So definitely we have also a law, Copyright Act 1957. So when we discuss, when we think, when we talk this copyright, definitely something which comes in our mind is creativity. It has to do with the creativity. More and more creativity, more and more good to the society. किसी भी समाज में, आप किसी भी सभ्यता में, किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में जो क्रिएटिविटी है उसके इम्पोर्टेंस को समझना होगा। राष्ट्र की धरोहर कहते हैं हम किसी भी संस्कृति को, किसी भी क्रिएटिविटी को
जो आर्ट एंड कल्चर है, every nation, every society wants to protect and preserve. I can give you example. 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री की एक वार्ता हुई। रसिया यूक्रेन के इस वॉर के बीच में कई इंटरनेशनल इश्यूज और कई इंटरनेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर इस मीटिंग को बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया। लेकिन पीछे से एक ऐसी भी घटना हुई जिसका कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे इस क्रिएटिविटी, कला, संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर से भी जुड़ा हुआ है। You all might have watched television and you might have gone through this or might have watched this news story that some old monuments, some old sculptures, some old, very ancient, antique artistic works brought to India. They were stolen and they were sold in foreign countries. And when they got confiscated by that country's authority, and it was revealed to them that this creativity, this art belongs to India. But even though it was not handed over to India, but now with the negotiations, the diplomatic efforts, they have been brought to India. It's a very good news. So you can easily understand the importance of this art and culture and this creativity to any nation, to any society. क्योंकि एंशियंट टाइम्स से ही जितने भी ऑथर्स हैं, पेंटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, मीनिंग देयर बाय क्रिएटर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो जो भी ह्यूमन ब्रेन से जो क्रिएट करते हैं हम, जो भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी ये म्यूजिशियंस हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स हैं ओवरऑल, इनको सिंस टाइम इमेमोरियल दे हैव बीन प्रोटेक्टेड, दे हैव बीन रिवॉर्डेड, they have been motivated. समाज, राष्ट्र उनको मोटिवेट करता है, समाज, राष्ट्र उनको रिवॉर्ड देता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करने की बात होती है। Why? क्योंकि उनका वैल्यू है। I have already told you, more and more creativity, more and more good to the society, good to the nation. So जहां भी गुड की बात आएगी, जो हमारे गुड के लिए होगा, so it becomes very necessary to protect and preserve that thing, and that we do, and we do since time immemorial. And that's why I'm telling you that in ancient times also, if you take example, ancient time में जो kings होते थे, जो इन सारे इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करते थे। एक पैट्रोनेज था। The art and culture, these musicians, painters, scientists, they were state sponsored. So they used to work, they used to prosper under patronage of king. क्योंकि जो ऑनर है उनका, जो उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि रिवार्ड में उनको प्रॉपर्टी भी मिलती थी, sometimes land, sometimes house, sometimes रियासत also उनको दी जाती थी, and all are dependent upon the king, patronage. So now there is no as such
monarch system or this kind of system. We are in democracy, but in this democracy, again, that kind of patronage is there, but that patronage comes from law. अब हमारे पास लॉ है. अदरवाइज एंशियंट टाइम में किंग से, आप एग्जांपल्स आपके सामने हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आप तानसेन का ले लीजिए, या फिर आप किसी भी और बड़े आर्टिस्ट का ले लीजिए, किसी भी बड़े म्यूजिशियन का ले लीजिए, किसी भी बड़े पेंटर का ले लीजिए. So they all used to get patronage from the king. So in this background, if I tell you about this modern welfare democratic state, so आज के डेट में क्या है? Common man is the king. आज के डेट में जो common man है वो king है. So जो भी need है in creative persons की, so definitely that's going to be fulfilled by the nation, by this state, and through law. Law है हमारे पास, कानून है हमारे पास. So definitely it was to protect the right, and definitely this right of these intellectual creators. So definitely we evolved several laws under the head of this intellectual property law, and one of them is copyright law. बहुत ही important branch of law है. ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट की बात हम सिर्फ मॉडर्न स्टेट में ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है. एंशियंट टाइम में भी मैंने बताया किस तरह से हम प्रोटेक्ट करते थे. हमारा जो एक तरह से उसको कहिए, दो इट्स नेगेटिव टर्म, मोडस ऑपरेंडाई, जो हमारा जो ये था तरीका था, वो भले ही डिफरेंट था, लेकिन एक प्रोटेक्शन, एक प्रिजर्वेशन के लिए मोटिवेशन, एक प्रिजर्वेशन और मोर एंड मोर क्रिएटिविटी के लिए रिवॉर्ड सिस्टम, ये एंशियंट टाइम में भी था. जब हम इस मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं, डेफिनेटली इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय लॉ. लॉ है हमारे पास. कॉपीराइट एक्ट 1957 है, इसकी भी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है. ऐसा नहीं है ये लॉ सीधे एक ही बार में हम लेकर आए, नहीं. पहली बार ब्रिटिशर्स इस तरह के कानून को लेकर आए हमारी कंट्री में. हमारा जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है कॉपीराइट लॉ का, तो ये ब्रिटिश रिजीम से आया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे इवॉल्व दिस काइंड ऑफ लॉ, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. Printing press is responsible for evolution of this kind of law, this modern law. Printing press था. Printing press के invention से ये सारी बातें आई हैं. इसको मैं कनेक्ट करूंगा फिर आपके मॉडर्न वर्ल्ड से. अभी मैं आपको ये कॉपीराइट का बैकग्राउंड दे रहा हूँ. प्रिंटिंग प्रेस किस तरह का थ्रेट बन गया इन सारे ऑथर्स के लिए, पेंटर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, जो क्रिएटर्स थे उनके लिए, you can easily imagine. Because the major threat to any creator is what? A threat of copying of his or her creativity. हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो हमारा सपोज लिटरेरी वर्क है, सपोज हमारा आर्टिस्टिक वर्क है, हम पेंटर हैं, आर्टिस्टिक वर्क है हमारा, म्यूजिकल वर्क है हमारा, हम म्यूजिशियन हैं, और इसके कॉपिंग का जो खतरा है, ये सबसे बड़ा थ्रेट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी क्रिएटर के लिए. सो जो गुटेनबर्ग्स में ये हुआ था, चूंकि इन्वेंशन इसका कॉपीराइट का, सॉरी प्रिंटिंग प्रेस का. सो प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद और उसी एरा में एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हुआ. आप लोग सब लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था इंग्लैंड में. सो उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय और इस प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन में जो एक कनेक्शन था, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये पूरी समस्या सीधे दिखाई देने लगेगी. जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन साथ साथ था, तो सारे जो सेक्टर्स थे उनमें
इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गया। कुछ ऐसा ही हुआ पब्लिशिंग के फील्ड में। जो पब्लिशर्स थे उन लोगों ने अब कॉपी बनाना बड़ा आसान हो गया, किसी भी वर्क का कॉपी बनाना बड़ा आसान हो गया। पहले जहाँ सपोज करिए आप हैंडमेड अगर कॉपी बनाते हैं या कुछ भी अगर हैंडमेड करते हैं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी, एवरीथिंग, expensive also, very expensive affair. That's why you all know why all handicrafts are very expensive and all machine made things are very cheaper, you can easily understand. So जो भी राइटर्स थे, सपोज करिए जो ऑथर्स थे, उनकी जो बुक्स थी, जो उनके कंपाइलेशंस थी, जो उनके पोएम्स की कंपाइलेशन या जो भी उनका वर्क था, जो लिटरेरी वर्क था, अब उसकी कॉपीज बनाना बहुत ही आसान हो गया था, बहुत ही सस्ता हो गया था उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एरा में। तो उन लोगों के सामने समस्या ये थी कि उनका एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया था। उनको मिलता था बहुत ही नॉमिनल रिवार्ड, लेकिन जो पब्लिशर्स थे उनका जो प्रॉफिट था वो लगातार बढ़ते गया इस एक इन्वेंशन की वजह से। क्योंकि अगर दुनिया में या किसी राष्ट्र में सर्कुलेशन के लिए उस एक लिटरेरी वर्क की सब ये पूरा बेस है हमारे पूरे डिस्कशन का, कॉपीइंग, एंड आई एम फोकसिंग ऑन दिस एस्पेक्ट, कॉपीइंग। ये आपको समझना होगा कि कॉपीइंग जब तक डिफिकल्ट है तब तक आपके राइट्स ज्यादा सुरक्षित हैं। कॉपीइंग जहां आसान हो गया, कॉपीइंग जहां बहुत ही सुविधाजनक हो गया, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव हो गया, वहां पे खतरा बढ़ जाता है। दैट्स माय पॉइंट। और इसकी शुरुआत वहीं हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एरा में, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के साथ, जिसको हम गुटेनबर्ग्स इन्वेंशन कहते हैं। जर्मनी में हुआ था इन्वेंशन, जर्मनी में हुआ, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो पड़ा इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड की ही कॉलोनीज थी थ्रू आउट द वर्ल्ड और उनका ही सारा प्रचार प्रसार जो भी था उन्हीं का था। तो जब ये पब्लिशर्स जो थे, पब्लिशर्स जो लॉबी थी, एक लॉबी क्रिएट हो गई थी वहां पे पब्लिशर्स की। वो बहुत ही सस्ते दामों पे लिटरेरी वर्क लेते थे, या जो उनका कंपनसेशन था, जो उनका कंसिडरेशन था, जो ऑथर्स थे, वो बहुत ही नॉमिनल था। लेकिन जो पब्लिशर्स थे उनका सर्कुलेशन बहुत ही वाइड हो गया, क्योंकि कॉपी बनाना बहुत ही आसान हो गया था उस इन्वेंशन की वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। बहुत बड़ी लॉबी हो गई और वो एक्सप्लॉइट करने लगे जो वहां के ऑथर्स थे। तो उसी में एक जॉन मिल्टन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत बड़ा वर्क है, उसके ऑथर थे जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन ने सबसे पहले रिवोल्ट किया, जो पब्लिशर लॉबी थी इंग्लैंड की, उसके अगेंस्ट में जॉन मिल्टन ने बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा किया और इतना प्रेशर दिया गया सरकार के ऊपर, जो वहाँ की इंग्लैंड में जो भी सिस्टम था, उस प्रेशर की वजह से पहला जो एन एक्ट आया, जिसको हम एन एक्ट कहते हैं, कॉपीराइट एक्ट भी उसको कहते हैं, जो पहला एक्ट आया एन्स एक्ट, वो उसी प्रेशर की वजह से आया, जो एक रिवोल्ट और जो एक प्रोटेस्ट और जो एक एजिटेशन उन सारे ऑथर्स के द्वारा शुरू किया गया। जो लिटरेरी वर्क के ऑथर्स थे, इस पब्लिशर लॉबी के अगेंस्ट में उन लोगों ने खड़ा किया, और उसके बाद से ये इस तरह का कानून आया रेगुलेशन करने के लिए कॉपीइंग का। तो आज की डेट में आप लोग देखते भी होंगे कि कोई भी अगर बुक पब्लिश करना है तो अभी भी ये होता है, एक्सप्लॉइटेशन है अभी भी, बट वो लिमिटेड है, क्योंकि अब बहुत सारे रेमेडीज अवेलेबल हैं आज की डेट में आपके पास। आप एक्शन ले सकते हैं उस पब्लिशर के अगेंस्ट में। कोई भी बुक अगर आप पब्लिश कराते हैं किसी पब्लिशर से, तो आप उस पब्लिशर को ऑथराइज करते हैं। ऑथराइजेशन होता है कॉपीज का, नंबर ऑफ कॉपीज का। जो भी एग्रीमेंट होता है
पब्लिशिंग का जो एग्रीमेंट होता है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, और उस क्लॉज में यही होता है कि कितने नंबर ऑफ कॉपीज के लिए आपने इस पब्लिशर को ऑथराइज किया है। सपोज करिए 1000, तो पब्लिशर 1000 कॉपी ही प्रिंट करेगा। अदरवाइज एक बार आपने मनुस्क्रिप्ट दे दी तो उसके लिए बड़ा आसान है कि 10,000 कॉपी या 20,000 कॉपी एक हफ्ते में वो तैयार कर दे उस सारे वर्क की, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया के किस किस देश में और कहाँ कहाँ वो उसको बेच रहा है। Because you have your own limitations, you have your own resources, and your resources are definitely limited. You cannot control, you cannot watch everywhere कि कहाँ मेरी बुक सेल हो रही है, किस किस कंट्री में सेल हो रही है, किस किस स्टेट में सेल हो रही है, किस किस गली में सेल हो रही है, आपको नहीं पता चलेगा। So still this exploitation is being done. I'm not saying that it has been stopped or it has been abrogated absolutely, or it has been prevented absolutely. No, still it is being done. But we have a check, and this check is created by law. क्योंकि एक deterrence जरूर क्रिएट किया गया इस लॉ से, क्योंकि रेमेडीज की बात है, बहुत सारे रेमेडीज अवेलेबल हैं, सिविल रेमेडीज हैं, क्रिमिनल रेमेडीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज आर अवेलेबल इन दिस लॉ। तो आप उनको रोक सकते हैं आज के डेट में। लेकिन जबकि ये घटना है उस समय ऐसे कानून नहीं थे, तो उन लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारा जो वर्क है उसकी वैल्यू कुछ है, हमको मिलता कुछ है, और हमारी क्रिएटिविटी के बेसिस पर एक बिजनेसमैन जो एक पब्लिशर है वो हमसे कई हजार गुना प्रॉफिट कमा रहा है। कितनी बड़ी समस्या थी। हमारा वर्क है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमारा इंटेलेक्ट है, एंड someone else is making money on the basis of my creativity. This was a big challenge before all authors in that era, and that's why this John Milton led this protest, and they pressurized the authorities, government, and they somehow came out with a solution in the form of one statute in the field of copyright. So यहीं से पूरे कॉपीराइट लॉ का इवोल्यूशन होता है। अब सवाल ये है कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज नॉट वन राइट, इट्स बंडल ऑफ राइट्स। Plenty of rights are there, numerous rights are there. Otherwise, normally people think that this right to copyright, no, definitely it is one of the aspects, but there are many other rights, important rights. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो पहला राइट होता है वो राइट टू रिप्रोड्यूस। I have authored something and I am to reproduce, उसको दोबारा बनाना है। कौन बनाएगा दोबारा उसको? उसकी एक कॉपी कौन तैयार करेगा? रिप्रोड्यूस करने की बात हो रही है, उसकी जो नेक्स्ट कॉपी है वो कौन तैयार करेगा? मी, इट्स माय राइट, इट्स माय राइट। मैंने एक वर्क किया, उसका ट्रांसलेशन करना है, कौन करेगा ट्रांसलेशन? इट्स माय राइट। उस वर्क का एडाप्टेशन करना है, सपोज करिए एक मैंने नॉवेल लिखा, उस नॉवेल पर एक मूवी बननी है, तो उस मूवी बनाने के लिए जो भी मेरी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल होगा वो राइट किसका है? उस क्रिएटिविटी पर मूवी बनाने का, वो मेरा राइट है। एडाप्टेशन एब्रिजमेंट का है। इसी तरह से कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन का है। मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, अब उन कविताओं का रिसाइटल होना है पब्लिक में, वो राइट किसका है? मेरा राइट है। बीइंग पोएट, इट्स माय राइट टू रिसाइट माय पोएम्स टू द बिफोर द ऑडियंस। मैंने एक सिनेमा बनाया है और उस सिनेमा को सिनेमा हॉल में दिखाने का राइट किसका है? मेरा है। मैंने बनाया है, वो मैंने बनाई है वो फिल्म, इट्स माय राइट। तो इस तरह से बहुत सारे राइट्स हैं। अगर आप सेक्शन 14 को देखें कॉपीराइट एक्ट में, तो these all numerous rights are actually enumerated in that section 14 of the Copyright Act. और वो vary करता है because uniformity cannot be maintained. It's not possible
because copyright subsists in different areas, and copyright is given only to those areas which are specified in that section 13 of the Copyright Act. Copyright Act में जो section 13 है उसमें बहुत सारे एरियाज स्पेसिफाइड हैं और उन्हीं एरियाज में कॉपीराइट मिलता है, जैसे लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, सिनेमाटोग्राफ फिल्म है। यही वर्क्स हैं जिनमें कॉपीराइट सबसिस्ट करता है। अब इनके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। लिटरेरी वर्क को ले लीजिए तो कई सारे पार्ट्स हैं, कंपाइलेशन है, अदर थिंग्स है, एब्रिजमेंट है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उस लिटरेरी वर्क के। आर्टिस्टिक वर्क लीजिए तो उसमें पेंटिंग है, उसमें स्कल्पचर है, उसमें फोटोग्राफी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जो मैंने लिटरेरी वर्क कहा उसका एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड भी है, कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम लिटरेरी वर्क के अंडर आता है, लेकिन एक बुक के लिए जो राइट्स हो सकते हैं, क्या वही राइट्स हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हमको चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो राइट्स एक स्कल्पचर के लिए हम सोच सकते हैं अपने लिए, अपने अधिकारों की बात करते हुए, या उसको अपने वर्क एक्सप्लॉइटेशन को ध्यान में रखकर, क्या वही राइट क्या हम एक फोटोग्राफ्स के लिए भी सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो राइट हम एक सिनेमा के लिए सोच सकते हैं, क्या वही राइट हम एक लिटरेरी वर्क के लिए सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दे वैरी बिकॉज रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, नीड्स आर डिफरेंट, एंड यू ऑल नो लॉ टेक्स केयर ऑफ नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। जो आपकी जरूरत नहीं है वो आपको देने से क्या फायदा है, और जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा भी देने का क्या फायदा है? Law takes care of everything. That's why if you make analysis of section 14, you would come to know that yes, law has taken care of this aspect. Numerous rights are there. Some rights are common under all heads. True. But those set of rights are not same. What set of rights are given to a literary work, the same set of rights are not given to a musical work. The same set of rights are not given to a cinematograph film. दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो exercise of right है, that heavily depends upon the nature of the work. उस वर्क का नेचर क्या है, आपका राइट अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जैसे लिटरेरी वर्क है तो उसके लिए आप सिनेमा वाले राइट्स नहीं दे सकते हैं। अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क है उसको सिनेमा वाले राइट्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के नेचर में डिफरेंस है, अलग अलग है। And that's why these set of rights are different. But some rights are common. True. Because they are useful to all creators. They are to be given to all creators. That's why they have been given to all creators. Whether artistic work, whether musical work, whether cinematograph film, whether dramatic work, computer program, some rights are common. लेकिन जो सेट ऑफ राइट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और ऐसा सेक्शन 14 में क्लियरली मेंशन है। तो जब हम ऐसे बहुत सारे राइट्स की बात करते हैं इस कॉपीराइट में, और ये कॉपीराइट एक लीगल राइट है, इट्स लीगल राइट। ये पॉजिटिव राइट भी है और नेगेटिव राइट भी है। कॉपीराइट है बिकॉज jurisprudence में you all might have studied पॉजिटिव राइट, नेगेटिव राइट। सो पॉजिटिव राइट भी है, नेगेटिव राइट भी है। पॉजिटिव राइट कैसे है? क्योंकि ये राइट्स कन्फर करता है उन क्रिएटर्स को,
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेक्शन 14 का एग्जांपल मैंने दिया, सेट ऑफ राइट्स हैं, यू आर टू रिप्रोड्यूस, हम रिप्रोड्यूस करेंगे, ये हमको अधिकार है, पॉजिटिव थिंग। हम एडाप्टेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंग। हम ट्रांसलेट करेंगे, पॉजिटिव थिंग, एंड इट्स माय एक्सक्लूसिव राइट, पॉजिटिव राइट। बट एट द सेम टाइम इट्स नेगेटिव राइट, ये नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? अदर्स आर प्रिवेंटेड, it's, I have already told you, it's my exclusive right. So the moment you say exclusive, exclusivity आ गई, meaning thereby others are prevented. अब बाकी लोग इसको नहीं करेंगे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक नेगेटिव राइट हुआ, कॉपीराइट। सिर्फ मैं करूंगा, जो मेरे अलावा बाकी लोग हैं वो बिना मेरी अनुमति के नहीं कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, दिस इज माय राइट, दिस इज माय एक्सक्लूसिव राइट, only I am supposed to do it, others are prevented. So when it is said others are prevented, it's negative right, ये negative right हो गया। तो सवाल यहाँ ये है, कॉपिंग से मैंने शुरू किया था कि जो सबसे बड़ा इशू जो होगा आपका वो कॉपिंग को लेकर ही होता है। कॉपिंग की बात हम करते हैं, तो जब भी हम कॉपिंग की बात करते हैं और जब भी हम इस कॉपीराइट की बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब तक अपने वर्क का, अपने क्रिएटिविटी का, जो भी कॉपिंग है, कॉपिंग का कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप रिप्रोडक्शन से है, रिप्रोडक्शन से है। एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हुई और उस मैन्युस्क्रिप्ट से कई कॉपीज तैयार होती हैं किसी भी बुक की, 1000 कॉपीज तैयार हुई, 2000 कॉपीज तैयार हुई, 5000 कॉपीज तैयार हुई, जितने भी आप तैयार कर सकते हैं वो हुई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अगर इस चीज को देखते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा ये इसको क्या बोलते हैं, जो कॉपिंग है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है कहीं ना कहीं से किसी भी ऑथर के लिए, किसी भी क्रिएटर के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट हो जाता है। तो पूरी कोशिश ये होती है इस कॉपिंग को कैसे रोका जाए। आप लोग रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें भी आपके साथ कई तरह की रिक्वायरमेंट्स जोड़ी गई हैं। नए जो आपका जो भी स्ट्रक्चर है पीएचडी कोर्स का, या उसमें बहुत सारा पब्लिकेशन आपको कराना होता है। जो भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसमें साथ में आजकल आपसे मांगा जाता होगा आप इसका प्लेजरिज्म चेक करके और उसकी रिपोर्ट सबमिट करिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपसे ये प्लेजरिज्म रिपोर्ट मांगी जाती है उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस क्या है? कॉपिंग को कम से कम करना है, रोकना है। आपका ओरिजिनल आना चाहिए, आपका ओरिजिनल वर्क आना चाहिए। जो भी असाइनमेंट है जो आप कर रहे हैं वो ओरिजिनल आना चाहिए। ओरिजिनल मीन्स दैट originates from that source, and that source is you. When a work is originated from you, where a work is originated from you, it is said original. But where this work does not find its origin in you, it's not your original work. Where a work finds its origin in you, you can say it's my original work, because this work finds its origin in me. It has come from me. It's your original work. But where it does not find its origin in you, it's not original. Why I'm emphasizing? Because copyright में जब भी हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जब भी हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये किसके लिए होता है? ओरिजिनल वर्क के लिए होता है। प्रोटेक्शन कब मिलेगा? जब वर्क ओरिजिनल होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप दूसरे का वर्क ले आइए कॉपी करके और उसमें खुद के लिए प्रोटेक्शन मांगिए या खुद के अधिकार की बात करिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आपकी क्रिएटिव, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मोटिवेट करना क्रिएटर्स को। पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिवार्ड देना क्रिएटिविटी को।
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी किसी भी समाज के लिए अच्छी बात होती है, किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी बात होती है। यही हमारा ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है। और इस ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे कि ये प्रोटेक्शन ओरिजिनल वर्क को ही मिलना चाहिए। दैट्स व्हाई यू कैन सी सेक्शन 13 में भी जब हम बात करते हैं कि वेयर कॉपीराइट सबसिस्ट, इन विच वर्क कॉपीराइट सबसिस्ट, तो हम बात करते हैं ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, ओरिजिनल म्यूजिकल वर्क, ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क। ये ओरिजिनल होना चाहिए, नॉट कॉपीड वन। अगर ये कॉपीड वन है, यू कैन नॉट क्लेम योर कॉपीराइट। कॉपीड वर्क में कॉपीराइट नहीं होता है, ओरिजिनल वर्क में होता है। अब बेसिक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है जब हम ओरिजिनल की बात करते हैं। मैंने बताया अभी आपको बहुत सारे इसके डेफिनेशंस हो सकते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं। एक मैंने आपको हाईलाइट किया, वेयर इट फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन यू, इट इज ओरिजिनल। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब हम ओरिजिनल वर्क की बात करते हैं, जब भी किसी भी वर्क, लिटरेरी वर्क हो, म्यूजिकल वर्क हो, आर्टिस्टिक वर्क हो, और हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ओरिजिनल वर्क होगा तभी इसमें प्रोटेक्शन होगा, अदरवाइज इसके लिए प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो इसका पूरा जो फिलॉसफी है, जो कॉपीराइट का जो पूरा बेस है, वो इसी पर जो एक इंग्लिश कमांडमेंट था, दाउ शैल नॉट स्टील, एक इंग्लिश कमांडमेंट था। और पूरा कॉपीराइट लॉ जो है वो कहीं ना कहीं से बेस्ड है इस एक इंग्लिश कमांडमेंट पे, दाउ शैल नॉट स्टील। यू आर नॉट सपोज्ड टू स्टील समवन एल्सेस क्रिएटिविटी। आप किसी और की क्रिएटिविटी को चुरा नहीं सकते हैं, ये एक इंग्लिश कमांडमेंट है। क्योंकि आप अगर किसी और के क्रिएटिविटी को अगर आप चुराते हैं, उसको एक्लेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये एक बहुत बड़ा हैमर है, बहुत बड़ा हार्म है उस पूरे इंटायर क्रिएटिविटी को लेकर। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मोर एंड मोर क्रिएटिव, बार बार मैं इसको हाईलाइट करूंगा क्योंकि यही बेस है हमारा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और अपने ऑब्जेक्टिव से आप डेविएट नहीं हो सकते हैं। अल्टीमेटली आपको क्या अचीव करना है? कोई भी लेजिस्लेशन जब हम बनाते हैं, आप कोई भी लेजिस्लेशन पढ़िए तो उसमें फर्स्ट जो प्रोविजन होता है, शुरुआती होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि आपको पूरे प्रोविजंस का जो इंटरप्रिटेशन करना है ऑलवेज इन द लाइट ऑफ दैट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। यही बात हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कर सकते हैं। जो प्रेमबल होता है, प्रेमबल को मिरर कहा जाता है, आईना कहा जाता है। प्रेमबल को लेकर बहुत सारी केसेस आपने पढ़े हुए हैं अपने एलएलबी और एलएम कोर्स के दौरान, और आपको पता है कि प्रेमबल का इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ चुके हैं इसको। कोई भी प्रोविजन का जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, किसी भी आर्टिकल का जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हम किसको ध्यान में रखते हैं? प्रीएम्बल को, प्रीएम्बल के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। क्योंकि और किसी भी लॉ में भी, लेजिस्लेशन में भी हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखकर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पूरे लेजिस्लेशन को बनाने के लिए जो हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया गया है, हमको वही अचीव करना है, वही हमारा टारगेट है। तो जब भी हम इस कॉपीइंग की बात करते हैं तो ये अगेंस्ट है। कॉपीड वर्क आपका ओरिजिनल वर्क नहीं है, और कॉपीराइट हमेशा ओरिजिनल वर्क में मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे वर्क्स हैं जहां पे हम इस ओरिजिनलिटी के टेस्ट को नहीं रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क। जो नेचर ऑफ वर्क है उसको ध्यान में रखकर हम इस ओरिजिनलिटी के टेस्ट को नहीं रख सकते। वहां हमने कुछ और टेस्ट रख लिया, वहां हमने सब्सटेंटिव सिमिलैरिटी का टेस्ट रखा। अगर सब्सटेंटिव पार्ट अगर सिमिलर पाया जाएगा तो उसमें कॉपीराइट नहीं मिलेगा आपको, दो इट्स नॉट ओरिजिनल, it doesn't find its absolute origin in you, but where the substantive part of this work has been copied, no question of giving you the copyright.
ऐसे वर्क्स क्या हो सकते हैं? सिनेमा हो सकता है, सिनेमाटोग्राफ फिल्म हो सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग हो सकता है। सो साउंड रिकॉर्डिंग और सिनेमाटोग्राफ फिल्म दो ही ऐसे वर्क हैं जिसमें हमने ओरिजिनलिटी के टेस्ट को नहीं रखा। वहां हमने क्या रखा? सब्सटेंटिव सिमिलैरिटी के टेस्ट को रखा। सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ दिस सिनेमा is not copied. Fine. This producer can claim copyright. Substantive part of this sound recording is not copied. Fine. This producer of the sound recording can claim copyright. क्योंकि सिनेमा एक ऐसा वर्क है जो नेचर आप जानते होंगे, कई बार बहुत सारे इंसिडेंटल उसमें इनकॉर्पोरेशंस होते हैं सिनेमा में, इंसिडेंटल। तो आप उसके लिए उसको आप इन्फ्रिंजमेंट के लिए आप उसको दोषी नहीं बोल सकते हैं, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसने हमारे कॉपीराइट का वायलेशन कर दिया या इन्फ्रिंजमेंट कर दिया। कई बार वो वर्क ही ऐसा है कि उसमें इंसिडेंटल थिंग्स होती हैं जिसका इनकॉर्पोरेशन होता है, और वो एक तरह से अपीयर होगा कि ये कॉपिंग ऑफ वर्क है, ऐसा दिखेगा। इट सीम्स दैट समहाउ दिस थिंग इज कॉपीड। मैं आपको एग्जांपल दूं अगर, तो आप मान लीजिए कहीं आप किसी ऐसे जगह पर हैं, आप एक फिल्म बना रहे हैं, तो आप फिल्म में क्या करते हैं? आप एक कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ये रनिंग फोटोग्राफ्स एक्चुअली होते हैं उसमें सिनेमेटोग्राफ फिल्म में, और वो सेलुलाइट जिसको बोलते हैं, उस पर पहले सेलुलाइट जो उस पर आप उसको वो लेयर होता है बेसिकली किसी चीज का, उस पर आप उन फोटोग्राफ्स को रनिंग अराउंड विथ म्यूजिकल वर्क जो भी होता है वो आप उसको करते हैं। तो मान लीजिए कहीं अगर आप मूवी बना रहे हैं तो वहाँ बहुत सारी चीजें रखी हैं जो किसी और की हैं, जिन पर किसी और का कॉपीराइट है। मान लीजिए मार्केट में कोई साइन बोर्ड ही है, उस पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो लिटररी वर्क है, उसमें किसी का कॉपीराइट है। लेकिन जब आप वीडियो बना रहे हैं किसी मार्केट का, तो समहाउ आप उस लिटररी वर्क को कैप्चर कर रहे हैं विदाउट परमिशन, आप कैप्चर कर रहे हैं वहां पे। आपने एक अगर मूवी का एग्जांपल दूं, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल आपको अगर दूं, एक मूवी थी रणबीर कपूर की, एक्ट्रेस कौन थी, आई डोंट रिमेम्बर, यस दीपिका पादुकोण। ये जवानी है दीवानी ये मूवी थी, इसमें एक इलाही करके गाना था। आप लोगों कितने लोगों ने देखा है इलाही वाला गाना? अगर मुझे कोई सुन रहा है तो बता सकता है कितने लोगों ने देखा है इलाही वाला? देखा है सब, देखा है ना। तो मिश्रा जी, आपने जब इलाही वाला गाना देखा तो उसमें आपने कुछ नोटिस किया कि पूरे गाने में एक्चुअली हो क्या रहा है? आप इस कॉन्टेक्स्ट में सोचिएगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इलाही के गाने में वो रणबीर कपूर एक्चुअली कर क्या रहा है? गाना तो अपनी जगह है, उसका म्यूजिकल कंपोजिशन अपनी जगह है, बहुत खूबसूरत गाना था, वो अपनी जगह है, लेकिन एक्चुअली में वो हो क्या रहा है, उसका प्रोफेशन क्या है उस पर्सन का, और वो कर क्या रहा है उस गाने में? उसको ट्रैवलिंग का शौक है, उसको फोटोग्राफी का शौक है, वो वीडियोस बनाता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड और जो भी एडवेंचर से रिलेटेड वीडियोस होता है वो बनाता है। तो उस पूरे गाने में उसका जो व्हीकल है उसमें एक ट्राइपॉड है, उस पर एक कैमरा लगा हुआ है, फिक्स है, जो कैप्चर कर रहा है पूरे सीन्स को, पूरे लोकेशन को। ऐसा ही है ना? जी। तो अगर वो मान लीजिए कर रहा है, और कहीं जैसे सड़क के किनारे आप देखते होंगे बहुत सारे स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, बहुत सारी पेंटिंग की हुई होती है, बहुत सारे लिटरेरी वर्क होते हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, सब कुछ तो उसमें कैप्चर होते जा रहा है, हो रहा है ना? मान लीजिए आप ही अगर कहीं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कहीं, तो उसमें बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड होती जाती हैं। आप कुछ और रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ इंसिडेंटली मान लीजिए आप अपना फोटो ले रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आप अपना खुद का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में किसी और की प्रॉपर्टी हो सकती है या नहीं हो सकती है? बिल्कुल। आप उसको हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। बैकग्राउंड में किसी का बैनर हो सकता है कि नहीं हो सकता? उस बैनर पे कुछ लिखा हुआ है, वो लिटरेरी वर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इंसिडेंटली बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो नेचर ही ऐसा इस वर्क का। मेरा जो पूरा पर्पस है समझाने का कि कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जिनका नेचर ऐसा होता है, जिनको आप ओरिजिनलिटी के टेस्ट में आप रख ही नहीं सकते हैं, वो पास ही नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट ओरिजिन उसका आप में नहीं है, उसमें तो बहुत कुछ है।
तब हम क्या देखते हैं कि जो सब्सटेंशियल पार्ट है इसका, जो सब्सटेंटिव पार्ट है इसका, क्या वो कॉपीड है? अगर आंसर अफर्मेटिव है, यस कॉपीड, कोई सवाल नहीं उठता है उसको कॉपीराइट देने का। जैसे ही आंसर निगेटिव होगा, नो, सब्सटेंटिव पार्ट इज नॉट कॉपीड, आप सोच सकते हैं कि यस इट डिजर्व्स, दिस वर्क डिजर्व्स कॉपीराइट प्रोटेक्शन। इसीलिए हमने ये डिफरेंशिएट किया है सेक्शन 13 में ही। जो अदर वर्क्स है लाइक लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, इन 4 वर्क्स में हमने ओरिजिनलिटी के टेस्ट को रखा। लेकिन जो 2 वर्क्स बचते हैं, जो सिनेमेटोग्राफ फिल्म है, जो साउंड रिकॉर्डिंग है, उसमें हमने कहा कि नहीं, इसमें हम इस टेस्ट को नहीं रख सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स वुड फेल। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम सब्सटेंटिव सिमिलैरिटी के टेस्ट को रख सकते हैं। हमारे लॉ मेकर्स का ऐसा मानना था, तो उन्होंने सब्सटेंटिव सिमिलैरिटी के टेस्ट को यहां पे रखा। फाइन। फिर जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, जो होता है क्वालिटी को लेकर भी कई बार बातें होती हैं कि जो क्वालिटी है वर्क का, वो तो आई कैन से क्वालिटी इज इमैटेरियल। Quality is absolutely immaterial. How worst my creativity is, if it is original, I deserve to be given copyright protection. कितना भी घटिया वर्क हो मेरा, कितना भी घटिया क्रिएटिविटी हो, हम कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। इसका क्वालिटी का कोई कनेक्शन नहीं है कॉपीराइट से। तो हम रिलाई किस पर करते हैं? ओरिजिनलिटी पे। ओरिजिनल होना चाहिए। हम रिलाई किस पे करते हैं सब्सटेंटिव सिमिलैरिटी नहीं होना चाहिए। क्वालिटी की बात कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, नो वे। सो क्वालिटी इज इमैटेरियल। कितना भी वर्स्ट पोएट्री हो आपकी, कितनी भी वर्स्ट पेंटिंग हो आपकी, कितना भी वर्स्ट स्कल्पचर हो आपका, कितना भी वर्स्ट फोटोग्राफी हो आपकी, आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। ऐसा है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे हम हैं, और ये जो पूरा एक इसको हम कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड है, आज का डिजिटल वर्ल्ड है। सो टेक्नोलॉजी गवर्न्स आवर एक्टिविटी। सो वी ऑल आर हेविली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी नाउअडेज। आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का क्या रेलिवेंस है यहाँ पे इस डिजिटल एरा में, और सब कुछ डिजिटलाइज होते जा रहा है। इवन आपकी लाइब्रेरीज डिजिटलाइज हो रही है। अब खासकर इस अगर पैंडेमिक को अगर आप ध्यान में रखें तो इस पैंडेमिक ने तो पूरा हमको डिपेंडेंट बना दिया है टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं। अभी हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप लोग अलग अलग प्लेसेस पे हैं। कोई कानपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई नोएडा में है, कोई हो सकता है लखनऊ में होगा, कोई हो सकता है किसी और प्लेस पे होगा, बट वर्चुअली हम लोग एक ही जगह पर हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। वो प्लेटफॉर्म है गूगल मीट। ऐसा ही है, ऐसा है ना? तो ऐसा है तो ऑब्वियस है कि बिना टेक्नोलॉजी के ये पॉसिबल था ही नहीं, इम्पॉसिबल था। ये हम सोच भी नहीं सकते थे, हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इस तरह से हम वर्क करेंगे और हम घर बैठे अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, हम डिस्कोर्स करेंगे, हम सेमिनार्स और वेबिनार्स जो हैं उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारी सारी एक्टिविटीज आज के डेट में क्या है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। So technology and scientific evolutions, they have played a very pivotal role in this modern world. They facilitate us. They provide a lot of convenience. Even when we talk about dissemination of knowledge, जो हम dissemination of knowledge की बात करते हैं, so definitely technology helps a lot, because now it's the era of communication. This is the era of technology. You all know how
easy, how convenient to pass on information from one place to another place. Within fraction of second, you communicate with people in America, you communicate with people in England. Fraction of second. Once send, your information is gone. And the person sitting in the USA, the person sitting in England, they get the information very quickly, very fastly. It happens. So जब भी हम dissemination of knowledge की बात करते हैं, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी नेशन हो, तो dissemination of knowledge पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि सबसे बड़ा एसेट अगर कुछ है, सबसे बड़ा वैल्यूएबल अगर एसेट कुछ है, तो वो है नॉलेज। इससे बड़ा कोई एसेट है ही नहीं, इससे बड़ा कोई एसेट है ही नहीं। आप जिस भी एसेट की बात करते हैं, that can be gathered, that can be acquired on the basis of knowledge. नॉलेज से बड़ा एसेट कुछ नहीं है इस वर्ल्ड में। That's why focus is on dissemination of knowledge. Every nation, every society wants more and more dissemination of knowledge. But sometimes people think that copyright is a kind of hurdle in this entire process of dissemination of knowledge. लोग क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा हर्डल क्या है इस dissemination of knowledge में? कॉपीराइट। कॉपीराइट को लोग हर्डल के रूप में देखते हैं। कई सारे लोग, उनको लगता है कि इस कॉपीराइट की वजह से कहीं ना कहीं से ये डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज का जो पूरा प्रोसेस है वो अफेक्ट हो रहा है, होता है, बिकॉज you are to obtain prior permission, and many a times it's very difficult to get that permission because the owner of copyright, suppose, resides somewhere else, is not accessible, his information is not with you. It's very difficult to find out that owner of the copyright, but you are in great need of using that work, but because of law you cannot do it. If you do it, that would be an offense. And suppose you are law abiding citizen and you are to make use of a work, content, information, knowledge, and that knowledge belongs to someone else, so आप चाहते हुए भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, आपको उसका परमिशन नहीं है। अगर आप करते हैं बिना परमिशन के, दैट वुड बी एन ऑफेंस, वो ऑफेंस हो जाएगा। आपके अगेंस्ट में बहुत सारे सिविल एक्शंस हो सकते हैं, क्रिमिनल एक्शंस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हो सकते हैं। तो आप नहीं कर पाते हैं। जब आप नहीं कर पाते हैं तो आपको जहां फिर कम्युनिकेट करता है, they are deprived of getting that valuable knowledge, that valuable information. You can imagine. So बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉपीराइट बहुत बड़ा हर्डल है, जो खासकर जो लिबरल अप्रोच, जिनको हम लिबरल सोसाइटी कहते हैं, लिबरल सोसाइटी। So liberal society, they believe in free flow of the information and this dissemination of knowledge and information freely. There should not be any hurdle. I can give you example. मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। आप सारे लोग कंप्यूटर यूज करते हैं? हमारे ख्याल से सारे लोग कंप्यूटर तो यूज, अभी भी क्या आप अपने किसी कंप्यूटर पे ही हैं? जो मोबाइल भी है वो भी क्या है, कंप्यूटर ही तो है। तो आप सारे लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है? मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, ऐसा है? किया आपने? जी सर। यस सर। जी सारे लोगों ने किया है, ठीक है, अच्छी बात है।
जब आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो दो बातें होती हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर्स आपको मिले होंगे। एक तो जिनके लिए आपको पैसा देना है और उनका लाइसेंस की लेना है, जैसे जितने भी एंटीवायरस हैं आपके पास उसमें भी आप अलग अलग कर सकते हैं। कुछ एंटीवायरस जो है वो फ्री में अवेलेबल है, आप सीधे जाइए अपने उसमें जो प्ले स्टोर है वहां से एंटीवायरस डाउनलोड कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वो होते नहीं है क्योंकि फ्री में मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें है नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है। जब तक पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वो अच्छी क्वालिटी का होगा नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। जो लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो पेड सॉफ्टवेयर्स खरीदते हैं उसी एंटीवायरस का। ऐसा होता है या नहीं होता है, बताइए। यस सर। जी सर। जैसे क्विकहिल लिया आपने या फिर आपने और कोई एंटीवायरस लिया, ठीक है, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ा होगा 600, 700, 1000 जो भी हुआ, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपने पे किया। इसी तरह से जो आपका पूरा सिस्टम ही है, मान लीजिए सिस्टम को ही ले लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, आपको पता होगा, आप सब लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए एप्पल का डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का अगर डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है, माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसको आप विंडोज बोलते हैं, है कि नहीं? यस सर। विंडोज तो विंडोज आप जब इंस्टॉल करवाते हैं अपने सिस्टम में, तो मोबाइल में तो प्री इंस्टॉल्ड होता है, वो मोबाइल कंपनी ने ही पे किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको मिल जाता है फ्री में। लेकिन जब कंप्यूटर की बात आती है, इस लैपटॉप की बात आती है, तो कुछ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो प्री इंस्टॉल्ड देते हैं, तो उसमें उसका प्राइस इंक्लूडेड रहता है, तो वहाँ पे आपको वैलिड लाइसेंस के साथ वो मिल जाता है। लेकिन कई बार उससे उसका प्राइस बढ़ जाता है। जहाँ भी प्री लोडेड सॉफ्टवेयर होगा जिस डिवाइस में, उसका प्राइस ज़्यादा होता है, और जो आप बेयर जो आप डिवाइस लेते हैं जिसमें प्री लोडेड सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, उसकी कीमत सस्ती होती है। बहुत सारे लोग सस्ती डिवाइसेस भी खरीदते हैं, ऐसा है ना? आपने विंडो अलग से डलवाया, हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड विंडो नहीं है, हमने अलग से विंडो लिया, तो कुछ लोग खरीदते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, पायरेटेड कॉपी जो मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत ही चीपर प्राइस पे अवेलेबल है, जो ग्रे मार्केट हम बोलते हैं, उस ग्रे मार्केट में सेम सॉफ्टवेयर जो उसकी कॉपी है वो अवेलेबल है और वो आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाती है। ऐसा होता है ना? माइक्रोसॉफ्ट के साथ तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 90% जो उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो पायरेटेड हैं। 90% मैं बोल रहा हूँ पायरेटेड हैं। 10% से उनका इनकम है, तब भी वो दुनिया की बड़ी कंपनियों में एक है। सोच लीजिए कि अगर वो 90% भी लीगली उनके पास आए, जो उनका लीगल क्लेम है, जो उनके पास आना चाहिए, अगर उनको मिलता है, तो यू कैन इमेजिन द प्रॉफिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इंडिया का पॉपुलेशन देख लीजिए, और मैं बता रहा हूँ कि जो मैं लैपटॉप वगैरह की बात कर रहा हूँ, मोबाइल डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर तो वो लोग फ्री में भी अवेलेबल कराते हैं जो उनके सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि कंपनी की, मोबाइल कंपनी के साथ उनका टाई अप है, वो अपना प्रॉफिट वहाँ से जनरेट कर लेते हैं। लेकिन लैपटॉप्स वगैरह में जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे वर्ड ले लीजिए, MS वर्ड है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, या फिर विंडोज़ है, तो ये मोस्टली ये लोगों के डिवाइसेस में ये पायरेटेड वर्जन ही आपको मिलेंगे। ऐसा है कि नहीं है? आपने देखा है कि नहीं देखा? जो वर्ड, जो MS वर्ड है, सबको MS वर्ड की जरूरत है। हम टाइप करते हैं कुछ भी, हमको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? आपको अगर नोट दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे टाइपिंग, बहुत डिफिकल्ट है। आप कस्टम्ड है, आप यूज टू हैं, आप बड़े कन्वीनियंट रूप से टाइप कर लेते हैं। कहाँ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करते हैं, करते हैं ना? बहुत कन्वीनियंट है। लेकिन अगर आप उस MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर को खरीदने जाइएगा तो मार्केट में इसकी प्राइस 10,000 है, लेकिन आपके पास वो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहां से आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने उसी को कहा कि भैया इसमें इंस्टॉल कर दो, उसने इंस्टॉल करके दे दिया। हाँ, उसने करके दे दिया।
लेकिन आपको पता है कि उसने जो करके दिया वो लीगल कॉपी नहीं है, दैट्स नॉट द लीगल कॉपी। सर ये कभी नोटिस ही नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो लीगल कॉपी नहीं है जी। वो पायरेटेड कॉपी है, वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री में मिल गया। आप खुद सोचिए, जिस सॉफ्टवेयर का दाम 10,000 है, वो एक लैपटॉप शॉप वाला, जो कंप्यूटर शॉप वाला आपको फ्री में या 200 रुपए में या 300 रुपए में 500 रुपए लिया होगा आपने सारे सॉफ्टवेयर डालने का। 500 रुपए दे दीजिए, सारे सॉफ्टवेयर हम आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर देंगे 500 रुपए में। तो 10,000 की चीज 500 रुपए में अगर आपको वो दे रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कॉपी नहीं है, वो लीगल कॉपी नहीं है, वो पायरेटेड कॉपी है। और ये एक ऑफेंस है, ये एक ऑफेंस है। चूंकि इतने लार्ज स्केल पे ये पायरेसी फैला हुआ है सॉफ्टवेयर्स को लेकर कि कंट्रोल करना उस कंपनी के भी बस में नहीं है, उनके बियॉन्ड कंट्रोल है, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो अथॉरिटीज के साथ कई बार मिलकर बहुत बार ऐसा उन लोगों ने कैंपेन की तरह चलाया है कि इसको रोका जाए, और वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी वो टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं। कई बार आपके सिस्टम को हैंग कर देंगे। आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर आप ओपन करिएगा और वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस आईपी एड्रेस से ये एक्सेस हुआ है, और फिर वो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेते हैं। ऐसा होता है। लेकिन मैंने कहा कि जहां पे लीगल एक्शन लेना भी तो कॉस्टली अफेयर है। यू हैव टू एंगेज अ टीम ऑफ लॉयर्स। मान लीजिए आपको किसी एक के खिलाफ अगर कोई लीगल एक्शन लेना है, तो हाउ एक्सपेंसिव दिस अफेयर वुड बी, यू कैन इमेजिन। आप समझ सकते हैं कितना एक्सपेंसिव है किसी एक के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना। आज के डेट में अगर आपको एक केस फाइल करना हो, आप सोचिए कितना एक्सपेंसिव है। अगर वही केस सपोज करिए 10 करोड़ लोगों के खिलाफ आपको फाइल करना है, देश के हर कोने में, कितना एक्सपेंसिव अफेयर होगा। उनको तो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो टीम है उससे कई गुना बड़ी लीगल टीम बनानी पड़ेगी। इस लेवल पे पायरेसी है इस कंट्री में। मैं यहाँ ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझना होगा कि जो ओरिजिनल कॉपी है और जो पायरेटेड कॉपी है, और मैंने एक लिबरल्स वाली भी बात की, और मैंने ये कहा कि डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज में कहीं ना कहीं से लोग कॉपीराइट को हर्डल मानते हैं। मैं उस चीज को आगे ले जा रहा हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम एक फ्रीडम की बात कर रहे हैं, राइट की बात कर रहे हैं, राइट टू नॉलेज की बात कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें हम कहीं ना कहीं से ये पाते हैं कि ये कॉपीराइट एक हर्डल के रूप में है। कई लोग पाते हैं, कुछ हद तक ये सही भी है। हाँ, ये एक हर्डल के रूप में दिखता है, ऐसा लगता है कि ये हर्डल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचिए, उस एम एंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर सोचिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये हर्डल नहीं है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। कई बार आपको एक होता है ना शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन। तो शॉर्ट टर्म गेन में कई बार लोगों को बहुत झटका लगता है, बहुत धोखा होता है। इवन शेयर मार्केट में आप देखिए तो वहां पे आपसे पूछा जाता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आपके पास पेशेंस है या नहीं है, आप तुरंत प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप कुछ देर में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। शेयर मार्केट में भी पूछा जाता है आप किस तरह के। तब आपको वो जो ब्रोकर है या जो भी आपका एडवाइजर है, जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो आपको एडवाइस करता है कि नहीं आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पहले जानना चाहता है कि आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो शॉर्ट टर्म गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म गेन भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म गेन में रिस्क बहुत बड़ा होता है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल भी सकता है, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और जो लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर है उसके लिए क्या है कि नुकसान की संभावना कम होती है। प्रॉफिट ठीक है बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, नुकसान कम से कम होगा, रिस्क कम से कम होगा। तो ऐसा इसलिए है, वही मैं बता रहा हूँ कि पूरा जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है इसमें वो यही होता है कि आपको, मैंने कहा था कि डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है, जरूरी है किसी भी सोसाइटी के लिए। क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए, किसी भी नेशन के लिए। दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंसिंग की बात हम करते हैं, बैलेंस बहुत जरूरी है। बिना इस बैलेंस के संभव ही नहीं है। और जो भी हमारे पास कानून है, आप उस कानून का भी अगर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, निर्वचन करेंगे, तो आपको यही मिलेगा
कि हर जगह ये कानून उसी बैलेंसिंग की बात करता है। तो मैं बता रहा था कि जब आप ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो भी है आप यूज करते हैं, एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है, लिटरेरी वर्क के कैटेगरी में आता है, और कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलता है इन सॉफ्टवेयर्स को। तो अलग अलग कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स का मैं एग्जांपल दे रहा था। जैसे विंडोज है, आपको पैसा देना पड़ेगा 10,000 15,000, तब आपको लाइसेंस की मिलेगा तो आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक MS DOS भी है जो फ्री में आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? MS DOS आपको फ्री में मिलता है, आप उसको खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उसका इस्तेमाल बहुत ही कठिन होता है और आप उसको कन्वीनियंट नहीं पाते हैं। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो सिर्फ DOS पे काम करते हैं। उसी तरह से एक उबंटू है, उबंटू भी आप एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो उसको भी आप यूज करते हैं तो बड़ा कन्वीनियंट नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है उसका यूज करना। लेकिन जैसे ही विंडोज की बात आती है आप उसको बहुत ही कन्वीनियंट पाते हैं, क्योंकि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एक पूरी टीम लगी हुई है माइक्रोसॉफ्ट की जिस पर हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। वो पूरा रिसर्च करते हैं, तब आपको एक अलग तरह का GUI आपको प्रोवाइड करते हैं, जो क्या उसको बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI। तो सब इसी का खेल है, कितना कन्वीनियंट आपका GUI है, आपके प्रोडक्ट की सेलिएबिलिटी उसी पर डिपेंड करती है। अगर आपका जो GUI है वो कन्वीनियंट नहीं है तो आपके प्रोडक्ट की सेलिएबिलिटी नहीं है, वो प्रोडक्ट ज्यादा सेलिएबल नहीं है। तो प्रोडक्ट को सेलिएबल बनाने के लिए GUI पर फोकस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम लगी हुई है और वो पूरा उस पर काम करती है। तो मेरा यहाँ बस आपको ये समझाने का पर्पस है कि हर तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो अवेलेबल हैं, कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं। तो जो अनपेड हैं, जो आपको ऐसे अवेलेबल हैं, उसको हम बोलते हैं, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है फ्रीवेयर्स। दे आर फ्रीवेयर्स। आपने नाम सुना होगा फ्रीवेयर। फ्रीवेयर आपको बिना पैसा दिए, बिना कुछ किए आपको इजीली मिल जाता है, वो सीधे आप डाउनलोड करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट मींस जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें आप एक लाइसेंस आपको मिलता है टू यूज, एंड आप उस लाइसेंस एग्रीमेंट को साइन करते हैं। साइन मींस डिजिटली साइन करते हैं, अपना कंसेंट देते हैं, देन ओनली यू कैन यूज इट। सो बहुत बार आप सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हैं, आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता होगा, जिसमें नीचे एक बॉक्स बना होता है, उसमें साइन का मार्क आपको डालना होता है और नीचे लिखना होता है आई एग्री। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उस एक डायलॉग बॉक्स में खुले रहते हैं। आप उसको स्क्रॉल करिएगा तो हजारों पेज के होते हैं। आपने ऐसा नोटिस किया है? वो हजारों पेज के होते हैं, आप उसको स्क्रॉल करते जाइए, करते जाइए। कभी देखा नहीं कितना बड़ा होता है, पर लंबा होता है, एग्री करा लेते हैं। बिल्कुल यही मैं बताना चाहता हूँ। हम कभी पढ़ते भी नहीं है, लेकिन वो एग्रीमेंट है मैडम, वो एग्रीमेंट है। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, वो एक एग्रीमेंट है, एंड यू आर दैट एग्रीमेंट बाइंड्स यू। वो एक लीगल एग्रीमेंट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने साइन किया बिना पढ़े हुए, बिना पढ़े। राइट सर। आपको अंदर के टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता भी नहीं है, और आपने कंसेंट, बिकॉज यू आर इन हरी, यू आर इन हरी। इवन आप फेसबुक आप डाउनलोड करते हैं तो आपको कंसेंट देना होता है, उसमें भी होता है। व्हाट्सएप आप डाउनलोड करते हैं या कहीं भी आप कोई अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कहीं भी आप साइन अप करते हैं, वहां पे आप कंसेंट देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पढ़ते नहीं है, खासकर आजकल ये सोशल मीडिया में तो बहुत ज्यादा चल रहा है। आप इतने हरी में हैं कि आपके पास समय भी और टाइम भी नहीं है आपके पास पढ़ने का, लेकिन आप एक एग्रीमेंट में आ रहे हैं, वहां पे आपने एक एग्रीमेंट दिया है वहां पे। मैं इस पर भी बाद में कभी चर्चा करूंगा किसी और टॉपिक के संदर्भ में, अभी सिर्फ मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। तो वो फ्रीवेयर्स हैं। तो जितने भी लोग जो इस अप्रोच के थे कि डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज जो है, इसमें कॉपीराइट एक हर्डल है, उन लोगों ने इन फ्रीवेयर्स को प्रमोट किया, इसको आगे बढ़ाया कि भाई आप अगर किसी भी डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज के लिए टेक्नोलॉजी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप लोगों को मना करेंगे या बिना पैसे के उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो इससे जो है नॉलेज का जो डिसेमिनेशन होना चाहिए, जिस लेवल पे होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। और हमको ज्यादा से ज्यादा डिसेमिनेशन कराना है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, क्योंकि हम चाहते हैं कि सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करे। तो हमको ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देना होगा।
तो उसको हम बोलते हैं फ्रीवेयर्स। फ्रीवेयर्स, उसमें कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं होता है, आप जब चाहें जैसे मर्जी आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो दोनों तरह के कंटेंट अवेलेबल है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। कुछ कॉपीराइटेड कंटेंट है जिसमें ओनर जो है वो चाहता है कि भाई आप हमसे पूछ कर ही इस्तेमाल करें, बिना हमसे पूछे इस्तेमाल नहीं करें। और पूछने का मतलब यह है कि आप हमसे लाइसेंस लें, लाइसेंसिंग का प्रोविजन है, आप हमसे लाइसेंस लें, और जब भी लाइसेंस इशू होगा तो उसके एवज में लाइसेंस फी मिलेगा। तो आप हमको पहले पे करें मेरा लाइसेंस फी, फिर हम आपको परमिशन देंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सक्लूसिव राइट है, हम आपको परमिशन देंगे तभी आप इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ये ऑफेंस होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं भाई, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए, और हम अपना, इसी के लिए एक टर्म भी है जिसका रेफरेंस मैं आपको बता दूं, एक कॉपी लेफ्ट टर्म यूज होता है। कॉपी लेफ्ट, कॉपी राइट की बात करते हैं, कॉपी लेफ्ट दैट मीन्स कि यू आर नॉट interested or you are not willing to claim your copyright, meaning thereby you have waived off your right। आप सब जानते हैं कि राइट होता है, वहां वेवर भी होता है, you have waived off your right, आपने वेवर कर दिया। हम जब भी लॉ ऑफ लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेशन वाले में क्या होता है, पूरा हम लोग एक पंच लाइन लिमिटेशन का सब लोग जानता है, क्या होता है पंच लाइन लिमिटेशन का, लिमिटेशन लॉ सबने पढ़ा है, उसका पंच लाइन क्या है, एक सेंटेंस है जो लॉ ऑफ लिमिटेशन के सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले पढ़ाया जाता है। लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट द राइट। पढ़े हैं ना आप लोग, LLB LLM कहीं भी लॉ ऑफ लिमिटेशन सीटीसी के साथ जब पढ़ाया गया होगा आपको, तो ये पंच लाइन जरूर पढ़ाया गया होगा, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट राइट। आपके रेमेडी को बार कर देते हैं, ठीक है, राइट को नहीं। राइट आपका है लेकिन रेमेडी नहीं अवेलेबल है, तो जब रेमेडी नहीं अवेलेबल है वैसे राइट का क्या फायदा, वो मीनिंगलेस हो जाता है, दैट बिकम्स मीनिंगलेस। सो सम पीपल दे वांट देयर कॉपीराइट, दे वांट टू अर्न, दे वांट टू एक्सप्लॉइट एट ऑप्टिमम लेवल ऑफ देयर क्रिएटिविटी, ऑफ देयर कॉपीराइटेड वर्क, बट सम पीपल दे डोंट वांट। तो इसमें क्या होता है, उसको हम कॉपीराइट जो हमारा लीगल जो है प्रोविजन 21 में है, सेक्शन 21 है कॉपीराइट एक्ट का, और उसमें इस तरह की बात है जो एक तरह का वेवर ही होता है कि आपने राइट को वेव कर दिया, भाई हमको कॉपीराइट नहीं चाहिए, आप इस्तेमाल करिए। क्योंकि आई एम इज ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, देयर शुड बी more and more dissemination of knowledge, and that's why I don't want to control it, I don't want to control it, but some people they want to control it। दो तरह के लोग हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जब भी हम ऐसी चीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो थ्रेट आज के डेट में देखा गया है, जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी कैसे आपको हेल्प करता है, और टेक्नोलॉजी कैसे एक थ्रेट भी है। टेक्नोलॉजी के दो फेस, देयर आर टू फेसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वन गिव्स यू एडवांटेज, कन्वीनियंस, एवरीथिंग। आज के डेट में तो हमारा सारा कुछ टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट है। एक ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, देख रहे हैं ना आप लोग जो मेरे हाथ में है, यस सर, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। हमारी पूरी लाइफ इस एक छोटे से डिवाइस में सिमट के रह गई है। राइट सर। कुछ भी चाहिए, कुछ भी करना है, इसके बिना संभव है आज के डेट में। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, स्टडी, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, घड़ी, कैमरा, जो अलग से आप कैमरा लेकर चलते थे, कैमरा, कुछ भी आप सोच लीजिए। आज के डेट में तो ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा गाइड हो गया है, हर चीज से कनेक्ट होता है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जलना है नहीं जलना है वो भी इसी से हो रहा है। एक बटन दबाइए पूरे घर का इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, एक बटन दबाइए ये बल्ब आपका ऑन हो गया, एक बटन दबाइए आपका ये टीवी ऑन हो गया। आप नोएडा में है, दिल्ली में आपके घर पे एसी ऑन हो गया, इस एक डिवाइस से। इट हैज चेंज्ड आवर लाइफ। टेक्नोलॉजी पॉजिटिव थिंग, बहुत एडवांटेज है। नेगेटिव, ग्रेट थ्रेट दिस टेक्नोलॉजी, ग्रेट थ्रेट, ये आपको बहुत परेशान भी कर रहा है। गलती से अगर एक बटन दब गया, एक किसी का भेजा हुआ लिंक दब गया, तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो गया। आपके 1.5 लाख रुपए जो अकाउंट में थे वो किसी और के अकाउंट में चले गए बिना किसी आपके
परमिशन के, बिना आपके किसी चेक के इश्यूएंस के, बिना आपके किसी डिजिटल ट्रांसफर के किसी और के अकाउंट में चले गए, क्योंकि आपने एक बटन गलती से दबा दिया जो एक लिंक था। ऐसा होता है। तो आप आज के डेट में बात करते हैं ना साइबर फ्रॉड और ये सब, क्या है ये? टेक्नोलॉजी का ही तो इस्तेमाल है उसमें, बिना टेक्नोलॉजी के कैसे होगा? So I mean to say there are two facets of technology. One phase gives you lot of advantages, another phase gives you lot of trouble, lot of inconvenience. बहुत परेशान करता है ये आपके हेल्थ को असर कर रहा है। जो रेडिएशन हो रहा है उससे आपका हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, जो इसकी वजह से आपके स्लीप में इम्पैक्ट है, आपके थिंकिंग में है, आपके माइंड पे है, आपके सोचने के तरीके में है, आपके बिहेवियर में है। आप अगर इसकी नेगेटिविटी का लिस्ट बनाइए तो वो भी बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। सिर्फ एक ये टेक्नोलॉजी नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी, उसके दो आयाम है, दो फेस हैं, और एक में बहुत ज्यादा कन्वीनियंस है और दूसरे में बहुत ज्यादा नुकसान। ठीक है। So as far as this digital technologies are concerned, so definitely they do not exist in vacuum. They can be a powerful tool for advancing human progress. I have already told you they give you a lot of advantages, lot of conveniences, and that's why they contribute greatly to the promotion and protection of your various rights, various interests. जितने भी आपके राइट्स और इंटरेस्ट हैं उनको लेकर, और जो आज के डेट में जब हम बात करते हैं, जैसे आपका मैंने बताया कि जो आपका ये फ्रीडम, जो पर्सनल फ्रीडम है डिजिटल इन्वायरमेंट में, इसको लेकर भी अगर आप जब देखते हैं तो उसमें कई तरह की बातें आती हैं। जैसे आपके बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रिवेसी के इश्यूज हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और खासकर जब हम बात करते हैं जो डेटा इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की, जब हम बात करते हैं, जो डेटा इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें आप सबको पता होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल आजकल बढ़ गया है, जो एप्लीकेशंस हैं, और हाउ दे कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग द डिजिटल एनवायरनमेंट इन विच बोथ the state also, the business also, and they are definitely using extensively they are using extensively this intelligent thing, and that is artificial intelligence and all that, and that to predict, that to analyze, that to manipulate people's behavior, and extent is very high, and definitely we can say that unprecedented degree, up to unprecedented degree it is being done. I can give you example. आप सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप लोग? हाँ सर, करते हैं। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। उसके लिए कई बार हम क्या करते हैं, एक या तो गूगल सर्च मारते हैं या फिर किसी एक ऐप को खोलते हैं और उस पर सर्च मारते हैं कि हमको चाहिए क्या प्रोडक्ट। राइट सर। वो आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट है, आपकी पर्सनल चीज है। आप रात में आपने गूगल पे सर्च किया वॉशिंग मशीन प्राइस, आपने सर्च किया, आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है, आपने सर्च किया वॉशिंग मशीन प्राइस। सर्च आपने कहाँ किया? गूगल पे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप अपना फेसबुक खोलते हैं, तो जैसे ही फेसबुक खोलते हैं, स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, आपको एड्स आने शुरू हो जाते हैं। LG वॉशिंग मशीन, वर्लपूल वॉशिंग मशीन एट वेरी लो प्राइस एट अमेजन, सेल ऑफ वॉशिंग मशीन स्नैपडील, बिग बम्पर सेल ऑफ वॉशिंग मशीन फ्लिपकार्ट। आपने कोई अमेजन पे सर्च किया और अगली मॉर्निंग आप अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं, आपको ऐसे ही एड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया है? यस सर। कैसे हुआ ये? आपने तो गूगल पे सर्च किया था। यही तो नहीं समझ में आया, लेकिन ये ऐसा हमेशा होता है कि आप कोई चीज भी सर्च करो तो यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। हम लोग पूरे इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में और कॉपीराइट सब में क्रिएटिविटी, इन्वेंशन सब बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ह्यूमन इंटेलेक्ट की बात करते हैं। और ये देखिए, ये क्या आ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो आपके टेस्ट को, आपके पैटर्न को, आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। आपके एक एक एक्टिविटी को, एक एक मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। आपने जब ऐप को डाउनलोड किया तो आपसे वो बहुत सारे परमिशंस मांगता है। आपको पता है, आपने देखा है, हम लोग इतने जल्दी में होते हैं, हम लोग क्या करते हैं? ऑल, एग्री टू ऑल, परमिशन ग्रांटेड टू ऑल। अब आप हमको ये बताइए, जो अमेजन है उसको आपके कैमरे की क्या जरूरत है? अमेजन को आपके डिवाइस के स्पीकर की क्या जरूरत है? आपने सोचा है इसको कभी? लेकिन वो मांगते हैं और हम कंसेंट देते हैं। आपके कंसेंट से हो रहा है सब कुछ। ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपके सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को ये गैदर कर रही है। ये आपके कंसेंट से हो रहा है। आपने कंसेंट दिया हुआ है। अब वो आपके एक एक आप क्या सोचेंगे वो भी प्रेडिक्ट कर रहा है। अब आपको क्या चाहिए वो भी प्रेडिक्ट कर रहा है। आपने अगर किसी खास तरह के चीजों को खरीदा बार बार, ठीक है, वो आपके पैटर्न को एनालाइज करता है और फिर वो आपको खुद ही, आप देखते होंगे जब भी आप अमेजन खोलिएगा तो उसमें नीचे, या आप फ्लिपकार्ट खोलिएगा तो उसमें सजेशंस फॉर यू, बेस्ट सजेशंस फॉर यू, वो खुद ही आपको सजेस्ट करता है। कई बार तो वो आपको ये भी दिखाता है कि प्रीवियसली यू परचेज्ड। कई बार वो ये बोलता है कि आपने ये प्रोडक्ट 6 महीना पहले खरीदा है। अब वो आपकी जरूरत को भी देख रहा है। आपकी जरूरत क्या है? मान लीजिए कोई आपने कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट खरीदा, तो वो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट आप मैक्सिमम 3 महीना यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही 3 महीना पूरा होगा उस परचेज के बाद, तो वो बार बार पॉपअप आएगा कि अब आप इसको खरीदिए दोबारा, क्योंकि वो आपका पैक जो है कंजम्पशन के बेसिस पर, या आपने किस फ्रीक्वेंसी पर वो सामान खरीदा है, वो प्रोडक्ट खरीदा है, वो आपके फ्रीक्वेंसी को भी एनालाइज करते रह रहा है, क्योंकि आपने उसको कंसेंट दिया हुआ है। और वो आपको सजेस्ट करता है कि आप इसको खरीदिए, अब ये इस प्राइस पर अवेलेबल है, अब इसका प्राइस ये है, अब इसका प्राइस ये है, अब आप इसको खरीद सकते हैं या खरीदिए। वो आपको कहीं ना कहीं से टेम्प्ट करता है। एक तरह का ये टेम्प्ट करना हुआ। आपने ये नोटिस किया है या नहीं किया है? पहले ये बताइए। किया है? तो ये पूरा जो है जो डेटा इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, तो इस पूरे डिजिटल इन्वायरमेंट को ये क्रिएट कर रहा है। और इस डिजिटल इन्वायरमेंट को क्रिएट करके ये कहीं ना कहीं से आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके बिहेवियर को, टू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टू अनप्रेसिडेंटेड डिग्री। और ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, और ये जो पूरा जो आपका डिजिटल जो आपका इन्वायरमेंट है, जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं से हमारे इकोनॉमी पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। क्योंकि आपको पता ही है पूरा मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, पूरा मार्केट में, तो आपके जो पर्सनल डेटाज है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो ये डिजिटल इन्वायरमेंट में पूरा ये हर तरह की चीजें आपके साथ हो रही हैं। और इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, जिसमें मैंने कहा कि आपके जब राइट्स की बात आती है, फ्रीडम की बात आती है, उसमें आपके बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, बहुत सारे, जो मैंने ऑथर्स वगैरह का एग्जांपल दिया, तो ऑथर्स के जो राइट्स हैं वो इश्यूज हैं, कॉपीराइट का इशू है, ठीक है। और कहीं ना कहीं से ये आपके ह्यूमन राइट्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और हम लोग आगे बढ़ाएंगे अभी इसी से रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं, एक कनेक्शन में ही है, तो हम लोग यहाँ की बातों को भी वहाँ जोड़ेंगे और वहाँ की बातों को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन अभी चलेगा 3-4, और इसके बाद 3 और लेक्चर्स होंगे, तो उसमें हम लोग इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते रहेंगे। आई थिंक टाइम हो रहा होगा, आप लोग भी अब थोड़ा सा वो हो रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया, तो नॉन स्टॉप, तो आप लोग भी आई थिंक एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे अब, ऐसा है क्या? एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं आप लोग? नो सर। या कुछ इंटरेस्ट आप लोगों को मिला? काफी अच्छे से सर समझ में आया। और एक क्वेश्चन है सर, जैसे आपने
अभी बहुत सारे एंगल्स हैं मिश्रा जी, तो उसको हम लोग और आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो विद दिस नोट आई एम सर एक क्वेश्चन है, जैसा हाँ बताइए ना सर, जैसा आपने बताया कि ये ह्यूमन राइट को अफेक्ट करता है, तो जैसे किस तरीके से करता है बता सकते हैं? बिल्कुल करता है, ह्यूमन राइट को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। आप जब भी आप मैंने कहा ना कि आपके बिहेवियर को, आपके इवेंट टेस्ट को, आपके रिक्वायरमेंट को, आपके पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं से ये टेक्नोलॉजी जो है कंट्रोल कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहा है। तो आप ये बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी प्राइवेसी जो है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते हैं, तो उसको भी अगर कोई और कंट्रोल करे तो ये आपके ह्यूमन राइट्स को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप सोच सकते हैं इस चीज को। जी बिल्कुल सर। बहुत सारे और एंगल्स हैं जिसको हम आगे भी आपने एग्जांपल दिया था कि रात में हमने सर्च किया और वो मॉर्निंग से हमें फिर वो नोटिस करा रहा है, तो सर बिल्कुल, ऐसे भी तो बिल्कुल। हम डिस्टर्ब होते हैं पूरी तरह से कि भाई हमें बिल्कुल, अभी नहीं नीड है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और है, आपको बता रहे हैं, जब भी हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट होता क्या है, इसेंशियल राइट्स हैं ये, दे कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, दे कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। बाकी सारे राइट्स आपके कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, बट ह्यूमन राइट्स दे कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा मिश्रा जी, ह्यूमन राइट्स को कभी भी आप किसी टेरिटरी से या किसी भी चीज से आप उसको बाइंड नहीं कर सकते हैं। दे आर यूनिवर्सल इन कैरेक्टर एंड यू होल्ड दिस ह्यूमन राइट एवरीवेयर, wherever you go, you carry your human right। बाकी राइट्स में ऐसा नहीं है। बाकी जो आपके लीगल राइट्स हैं वो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको कर्टेल करते हैं, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है और आप हर जगह कैरी करते हैं अपने ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है आपके हेल्थ का, राइट टू हेल्थ। तो कहीं ना कहीं से ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपके उसको राइट टू हेल्थ जो है, जो आपका जो हेल्थ है उसको भी अफेक्ट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो कैसे ह्यूमन राइट प्रभावित नहीं हुआ, आप ये बताइए। जरूर होता है। इसके मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं, ये सिर्फ यही 2-3 एग्जांपल्स नहीं है, बहुत है इनके अलावा। आप सोचते जाइएगा, आपको मिलते जाएंगे, इसके बहुत सारे फेसेट्स हैं। आई होप यू गॉट इट। Yes sir, thank you. So with this note I am concluding for today, so we'll discuss few things again tomorrow. So thank you very much. थैंक यू सर। Okay. Who is coordinator? Coordinator कौन है इसमें? अभी कोई नहीं है। I think has left. अच्छा, अभी कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है अभी इस मीटिंग